Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in basic organic chemistry. Today our topic is alkanes. I will discuss physical and chemical properties of alkanes in this lecture. So first, brief description of physical properties of alkanes. अगर आप solubility की बात करें, we know that alkanes they are non-polar organic compounds. For example, we have carbon. These bonds they are non-polar in nature. So that's why when you discuss the solubility of these compounds, they are insoluble in water and they are miscible to some non-polar organic compounds or non-polar species. So या solvents आप जो है वो कह सकते हैं या आप जो है वो कुछ terms जो use करते हैं to differentiate these two systems, water और ये alkane या oil phase को आप differentiate करने के लिए use करते हैं. So all those species which has affiliation with water, they are known as hydrophilic species. And those which hate water, they are called hydrophobic species. या उनके लिए आप ये term भी use करते हैं, they are known as lipophilic. So it means they are soluble in non-polar organic solvents. So alkanes they are because they are highly non-polar, they are lipid soluble and they are insoluble in water. And next, boiling point. बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर, तो उनमें जो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो तो नहीं होंगी, एंड दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन. मिसाल के तौर पे इफ वी हैव मीथेन और इथेन और वी हैव प्रोपेन या ब्यूटेन, इट मीन C1 to C4 जो है these are gases. So low molecular weight alkanes they are gases. और from C5 to C17 they are liquids. So it means melting and boiling point is increased when you increase the number of कार्बन चेन लेंथ. ये जो बात हो रही है ये एक स्ट्रेट चेन की बात जो हो रही है. एंड up to C18 and 19 and higher alkanes they are solids. So अगर आप जो है वो बात करें branched and unbranched, then straight chain hydrocarbons they have high melting and boiling point as compared to branched. So it means branched alkanes they are low melting and low boiling. मिसाल के तौर पे if we have CH3, CH2, CH2, CH3. So here we have 5 carbons in a straight chain. So इसका जो boiling point है, boiling point of N-pentane when it is straight chain it is 36 degrees Celsius. And when we have branched chain hydrocarbons, suppose we have CH3, CH, CH3, CH2, CH3. So one branch is present, so it is 2-methyl butane. Boiling point is 28 degrees Celsius. And if we have more branching, then its boiling point is 9 degrees Celsius. So it means that straight chain or unbranched hydrocarbons or alkanes they are having high boiling point as compared to this branched. This is because कि अगर आप जो है वो इसको देखें इसका जो surface area है it is greater as compared to the surface area of this हाईली ब्रांच्ड पेंटेन जिसमें आपके पास सारी
ब्रांचिंग है, आपके पास 3 कार्बन हैं और 2 दोनों पे जो है वो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, इट इज़ 2 डाईमिथाइल प्रोपेन या नियो, आप इसे जो है नियो का वर्ड आप यहाँ यूज़ करते हैं। सो अगर आप इसको देखें, इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है, सो इट मीन इट हैज़ ग्रेटर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मिसाल के तौर पे 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड देन 3 कार्बन एंड देन 4 कार्बन एंड देन 5 कार्बन। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सारी कार्बन एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकती हैं। सो इट मीन वो जो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट होंगी इन हाइड्रोकार्बन्स में वो n पेंटेन में जो है वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू आइसोपेंटेन और एज कम्पेयर टू नियो का जो आप जो लास्ट वन है विच इज़ हाईली ब्रांच। या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो पैकिंग है वो आसान है, ईजी है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरेक्शन और ग्रेटर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन दीज कार्बन्स। अगर आप इसको देखें देन यू हैव 1 कार्बन लाइक दैट। दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे लाइक दैट। सो हेयर बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल्स वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स हैं वो उतने इफेक्टिव या इनकी जो पैकिंग है वो एफिशिएंट नहीं होगी। सो दैट्स वाई दीज हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट और इसीलिए इनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। Chemical reactivity of alkanes. Alkanes, they are generally known as paraffins. It derived from 2 words, param and affins. It means little, affinity. So alkanes, they have little affinity towards different reactions or reagent or acids or bases या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। सो दैट्स वाई आप अल्केन्स के बहुत कम रिएक्शन पढ़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वो जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है या कार्बन कार्बन बॉन्ड है वहाँ कहीं आपको जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है। इसलिए हम उन्हें जो है वो कहते हैं पैराफिन्स। सेकेंड इज वी नो दैट अल्केन्स दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इट मीन्स दे कैन नॉट गिव द एडिशन रिएक्शन। सो मोस्टली जो आप उनके रिएक्शंस पढ़ते हैं दे आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड जो है वो आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या हैलोजिनेशन जो आप अल्केन्स की पढ़ते हैं, जिसे हम अल्केन से अल्काइल हैलाइड जो है वो बनाते हैं, तो वो हम जो है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। मोर प्रिसाइजली अगर आप इसे जो है वो कंबशन रिएक्शन इन विच अल्केन्स, अगर आपके पास जो है वो मीथेन है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो हीट जो है वो इवॉल्व होती है, इसी को आप एज अ फ्यूल या आप जो है वो एज अ एनर्जी जो है यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंबस्शन है, अगर इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन जो है, अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम होगी, देन इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन इट प्रोड्यूस्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए जब जो है वो विंटर में अगर आप इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही होगी गैस की, तो उससे जो है वो सफोकेशन जो है वो होती है बिकॉज इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स की जो है वो इंटर कन्वर्जन देखें बेस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो अगर आपके पास है अल्केन्स, अल्केन्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करें देन दे गिव्स अस अल्कोहल्स, अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन दे गिव्स अस कार्बोनाइल कंपाउंड्स, carbonyl compounds may be
aldehyde are ketones. Carbon compounds upon oxidation they gives us carboxylic acid. और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो ऑक्सीडाइज करें देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट मीन्स कि अगर आपके पास है C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड में और यहां आपके पास है CH, so that carbon is most oxidized carbon and this is the least one. So it means कि अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है वो फ्रॉम अल्केन टू अल्कोहल बढ़ रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन. और अगर आप जो है वो कार्बोनाइल में देखें तो वो बॉन्ड और जो है वो इंक्रीज हुआ, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड जो है वो कार्बन के हैं ऑक्सीजन के साथ. और अगर आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें 3 बॉन्ड्स. सो जितने ऑक्सीजन के साथ कार्बन के बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ती जाएगी. सो दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और अगर इसके रिवर्स की तरफ आप आएंगे, मिसाल के तौर पे आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनेट कंपाउंड या अल्कोहल या अल्केन्स की तरफ जो है वापस आते हैं, देन दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज reduction. So this is understanding of oxidation reduction reaction in which we convert one functional group into an other one. Next is halogenation of alkane. It's free radical reaction. इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन अगर आप जो है वो करें अल्काइल हेलाइड्स की या मिथाइल क्लोराइड क्लोरोमीथेन या डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन, तो उसमें आप जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करके ये रिएक्शन कर सकते हैं. बट व्हेन यू कैरीड आउट दिस रिएक्शन इन लेबोरेटरी तो जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन आप करके अल्केन से अल्काइल हेलाइड जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो अगर आप सनलाइट या यूवी लाइट, डिफ्यूज लाइट यूज़ करते हैं, इट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन. और आप ये रिएक्शन इंडस्ट्री में हीट की प्रेजेंस में भी जो है वो कर सकते हैं. सो वी हैव CH4 प्लस Cl2. अगर आप इंडस्ट्री में हाई टेम्परेचर पे करते हैं 400 to 450 डिग्री सेल्सियस, वी हैव CH3Cl. देन दिस CH3Cl फर्दर जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी इन्हीं कंडीशन में. देन यू हैव CH2Cl2 और फिर आपके पास मोर रिएक्शन CHCl3 और फिर CCl4. So all the hydrogens of this methane they are replaced by halogen Cl and we have carbon tetrachloride at the end. ये जो है वो मिक्सचर भी बनेगा और आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो होगी. सो हाइड्रोजन्स दे आर रिप्लेस्ड बाय दीज हैलोजेंस. मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, so mechanism of this reaction, first is we have Cl and this bond is cleaved. अब आप इसे जो है वो हीट करेंगे या डिफ्यूज सनलाइट से, देन वी हैव Cl free radical. This is free radical. So this type of cleavage in which ये जो आप covalent bond आप इस तरह जो है वो ब्रेक करें कि दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लें और आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी प्रोड्यूस हो. दिस टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन. सो होमोलिटिक फिशन जनरेट फ्री रेडिकल्स. और अगर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आप जो है वो ए बी को ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव इस तरह की क्लीवेज हो तो उसे आप कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन और क्लीवेज. सो एज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोलिटिक फिशन
आपके पास केटाइंस और एनाइंस प्रोड्यूस होंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस होमोलैरिटी फिशन वी हैव फ्री रेडिकल। ये मैकेनिज्म में ये स्टेप जिसमें आप फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, दिस इज नोन एज इनिशिएशन। एंड देन दिस फ्री रेडिकल ये फिर जो है वो आगे सेकेंड स्टेप में जब रिएक्ट करेगा, दैट इज चेन प्रोपेगेशन, in which one radical it attacks at some neutral species generate another radical। तो वो एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल, फिर उससे एक नया रेडिकल, ये चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन जो है वो कहलाता है इन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो वी हैव Cl radical and we have methane, so it will gives us CH3 plus HCl, and this CH3 radical it then attacks at chlorine, or we have CH3 Cl and then this free radical। So this chain reaction start, और फिर आपके पास मिथाइल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड they are produced। So this type of reaction in which one radical attacks at some neutral species generate another free radical, in this case this free radical attacks at chlorine create another free radical, this type of sequence or this reaction this known as चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन। और चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है बाय टर्मिनेशन रिएक्शन। टर्मिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि आपके पास टू फ्री रेडिकल्स दे रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव्स अस न्यूट्रल स्पीशीज। मिसाल के तौर पे यहाँ जो पॉसिबिलिटीज हैं इन टर्मिनेशन रिएक्शन की, इफ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल इट रिएक्ट विद एन अदर मिथाइल फ्री रेडिकल, so this is neutral molecule, this is termination reaction। Or we have Cl, it react with another Cl and gives us this type of product। या आपके पास CH3 free radical, it react with this Cl free radical and we have CH3 Cl। So all these reaction in which free radicals they react with each other gives us neutral species as a final product, even electron species as a final product। This is known as टर्मिनेशन रिएक्शन। अब अगर आप जो है वो इन हैलोजेंस की, यहाँ मैंने पर्टिकुलरली क्लोरीनेशन की जो है वो एग्जांपल दी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास हैलोजेंस हैं, वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर आप इनको अरेंज करें बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर, देन दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस हैलोजन टुवर्ड्स दिस हैलोजिनेशन रिएक्शन। मोस्टली हम क्लोरीनेशन की जो है वो बात करते हैं बिकॉज दिस इज सिंथेटिकली मोर यूजफुल एज कंपेयर टू द अदर रिएक्शन। दिस फ्लोरीन इट इज मोस्ट रिएक्टिव। So because of high or greater reactivity of this fluorine, it is very difficult to control this reaction। ये इतना ज़्यादा जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई हम जो है वो फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते। और जो है वो आपके पास क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिर्फ आयोडीन हैलोजन्स में, आयोडीन एक ऐसा जो है वो हैलोजन है जिसमें जो जब आप हैलोजिनेशन करते हैं अल्केन्स की विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, तो ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो है वो इतना स्लो रिएक्शन है कि हम जो है वो वी कैन नॉट परफॉर्म द आयोडिनेशन ऑफ दिस अल्केन्स with the help of this type of sequence। तो जो है वो इसलिए हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन जो है वो कर रहे होते हैं अल्केन्स की। ब्रोमिनेशन के साथ भी ये है कि अगर आपके पास अगर हायर अल्केन्स हैं, मिसाल के तौर पे इफ वी हैव ईथेन, देन क्लोरीनेशन अगर आप करते हैं देन वी हैव CH3 CH2 Cl। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अगर आप इसकी जो है वो यही सीक्वेंस होता है तो CH3 Cl या CH2 Cl। तो इस तरह मिक्सचर जो है वो प्रोडक्ट्स का जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो सपोज इफ वी हैव ब्यूटेन CH3 CH2 CH3 एंड वी रिएक्ट दिस विद क्लोरीन या डिफ्यूज सनलाइट, then we have CH3 CH2
CH2Cl, एक ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनेगी, एंड सेकंड CH3CH2CHCl, एक ये बनने के जो है वो चांसेस हैं। तो इसकी जो परसेंटेज है इट इज़ 28% और ये आपके पास 72%, बिकॉज टू डिफरेंट फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस। अगर यहाँ जो है वो हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होती है तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स है, इससे जो है वो सेकेंडरी जो है वो सब प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। और अगर जो है वो इस टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव होती है तो आपके पास प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा और इससे जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो N ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो होगी। नॉर्मली ब्रोमिनेशन इट इज़ यूज फॉर द टर्शरी सबस्ट्रेट। मिसाल के तौर पे इफ वी हैव CH3 in each, so this is tertiary hydrogen। तो जब ब्रोमिनेशन अगर हम करते हैं इसी मेथड से हीट या sunlight, then this bromine preferably remove this hydrogen instead of this one, CH3। So tertiary butyl bromide is our product. So this is the sequence of the reactivity of this different halogen towards this reaction, and also if we have higher alkane, अगर आप जो है वो higher alkane ले लेंगे chlorine या sunlight, then we have this one, because all these hydrogens they are equivalent। अगर आप किसी भी पोजीशन से इस हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, your final product is क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन या साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होगी। सो नेक्स्ट जस्ट आई डिस्कस टू टर्म्स विच आर नोन एज क्रैकिंग या पायरोलिसिस एंड रिफॉर्मिंग, विच आर एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी ऑफ दिस अल्केन्स एज अ फ्यूल। आप अगर जो है वो क्रैकिंग और पायरोलिसिस, थर्मल क्रैकिंग जो है वो आप कह सकते हैं। वी नो दैट स्मॉलर अल्केन्स which have low molecular weight, they have boiling point, low boiling point, और उनकी जो efficiency है it is greater, वो as a fuel जब हम use करें, then we prefer those alkanes which have low molecular weight, low boiling point, we prefer these alkanes as a fuel. So cracking is the process in which higher alkanes they are converted into lower molecular weight alkane। It means at the expense of higher alkane आप जो है वो lower molecular weight alkane बना लेते हैं, which can be used as a best fuel in automobile engines। तो cracking जो है वो in the presence of heat भी आप जो है वो करते हैं, या catalytic क्रैकिंग भी आप करते हैं। दिस प्रोसेस इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच फर्स्ट फ्री रेडिकल्स दे आर प्रोड्यूस एंड देन दीज फ्री रेडिकल्स दे कंबाइन टू जनरेट द लो मॉलिक्यूलर वेट अल्केन। द सेकेंड टर्म इज रिफॉर्मिंग। So as I discussed that these alkanes which are low molecular weight alkane and low boiling point, they have good efficiency। तो अगर आपके पास जो है वो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपके पास सपोज एन हेप्टेन है, सो दीज स्ट्रेट चेन अल्केन्स दे हैव लो इग्निशन एफिशिएंसी, इनकी जो इग्नाइटिंग पावर है वो कम होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस इग्नाइटिंग पावर, उनकी जो इग्निशन पावर है वो अगर जो है वो कम है, तो आप इंजन में जब हम इन अल्केन्स को यूज़ करेंगे देन दे कैन कॉज नॉकिंग। तो नॉकिंग को रिमूव करने के लिए आप इन अल्केन्स को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसी ऐसे अल्केन में कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो जो है ना वो इस तरह हो कि उनमें कार्बन नंबर यही रहे, बट दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। एंड इफ़ वी कैन कन्वर्ट दीज अल्केन इनटू एरोमेटिक, या मिसाल के तौर पे आप एरोमेटिक अल्केन में जो है वो कन्वर्ट कर लें, या आप जो है वो ब्रांच्ड में कन्वर्ट कर लें, और ब्रांच्ड अल्केन्स।
So it means in reforming, if we have a straight chain alkane which has 7 carbon number, they can cause knocking in automobile engines. But when these straight chain alkanes, they are converted into branch chain alkane. So branch chain alkane, this process is known as reforming, and in this case we can improve this problem which is associated with this straight chain alkanes. So this knocking, it can be reduced when we convert these straight chain alkane into branch chain alkane, and this process is known as reforming. So this is all about the physical properties of alkanes, in which I have discussed the solubility and melting point, boiling points of these alkanes, and chemical reactivity of alkanes. In my upcoming lecture, I will discuss the method used for the preparation of alkenes and chemical reactions of alkenes. Thank you very much.